بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹاک اور میں ہوں ندیم ڈار۔ اور حکومت آمنے سامنے ہے، کئی جگہ پہ معاہدات بھی ہو رہے ہیں ایک سیاسی جماعت سے یا مذہبی جماعت سے، ابھی تک یہ نہیں کلیئر ہو سکا کہ وہ معاہدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ مہنگائی جو بڑھتی جا رہی ہے، وہ مہنگائی کس طرف جائے گی، کیا عوام جو ہے سستا کھانا کھا سکیں گے یا نہیں کھا سکیں گے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ اور اس پروگرام میں میرا ساتھ دیا کریں گے مفید تجزیہ کار اور سیاسی شخصیات۔ لیکن آج کے پروگرام میں میرے ساتھ دو زبردست قسم کے انالسٹ موجود ہیں۔ میں تعارف کروا دوں، ملک آفتاب صاحب۔ ملک آفتاب صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں اور ہیومن رائٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ظفر اقبال طارق صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں، ماہر قانون بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ آباد بار کے اس دفعہ نائب صدر کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، ان سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک سیاسی جماعت کو یا مذہبی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے 2 دفعہ دھرنے دیے، بلکہ کئی دفعہ دیے، لیکن اس دفعہ لانگ مارچ وہ کرنے جا رہے تھے، بڑا زبردست ان کو روکا گیا۔ انہوں نے بھی اپنی تحریک جاری رکھی، لیکن ایک دم سے پھر معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کیا محرکات آپ سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آج کا یہ بڑا حساس اور سینسٹیو موضوع ہے کہ طریق لبیک جو ہے، جس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے جی، اور اس کی پیچھے آپ کہتے ہیں 2 دفعہ دھرنے، یہ 6ٹھی دفعہ کا ان کا یہ لانگ نہیں، جو بڑے دھرنے لاہور بھی بند کر دیا گیا، مختلف شہر بند کر دیے گئے، پہلے لانگ مارچ کی طرف یہ جا رہے تھے۔ پہلے یہ اپنا جو مرحوم رضوی صاحب ہیں، ان کے دور میں بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا، وہاں معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدہ جو ہوا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ وہ معاہدہ یہ تھا کہ صرف ان کو یہاں سے اٹھایا جائے۔ فرانس کے سفیر کی بے دخلی کا معاہدہ تھا، وہ یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ ایسا ممکن ہی پاسبل ہی نہیں تھا، تو وہ صرف اس کو اٹھایا گیا غلط معاہدہ کر کے، تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے انہوں نے دوبارہ یہ شروع کیا۔ لیکن میں خاص طور پہ یہ بتاؤں کہ اس دفعہ انہوں نے ان کا جو تھا نا کلیم، وہ یہ نہیں تھا کہ فرانس کے سفیر کو آپ یہاں سے بے دخل کریں۔ اس دفعہ صرف سعد رفیق کی رہائی کا مسئلہ تھا۔ لیکن یہ ایشو جناب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، یہ انہوں نے خود کریٹ کر دیا کہ سعد رفیق صاحب ہو چکے ہیں، سعد رضوی صاحب جو ہے وہ ان کی صرف رہائی کا معاملہ تھا۔ تو یہ جو بے دخلی کا معاملہ ہے، یہ تو شیخ رشید صاحب نے خود کریٹ کیا، تو وہ اس بات پر پکے ہو گئے۔ اچھا، محرکات کیا تھے؟ لانگ مارچ کا معاہدہ یہ تھا کہ جو ان کے سفیر ہیں فرانس کے، ان کو نکالا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے۔ اب ایک ڈیل ہو چکی ہے، ایک طرف میڈیا کو روک دیا گیا، آپ کوریج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، میڈیا کو جو آرڈر ہوئے انہوں نے وہ کیا، لیکن دوسری طرف کہا گیا جی کہ اگر یہ اسلام آباد آئیں گے، پنڈی میں آئیں گے تو بڑی سختی سے اسے نپٹا جائے گا۔ محرکات کیا دیکھتے ہیں آپ پیچھے، کیا وجہ کہ ایک دم سے پھر معاہدہ سامنے آ جاتا ہے؟ کیا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس گیم کو جانا بگاڑنے میں 2 آدموں کا ہاتھ ہے، ایک شیخ رشید کا، ایک فواد چودھری صاحب کا۔ انہوں نے یہ کہا یہ ملیٹنٹ ہیں، یہ کالعدم ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ عسکریت پسند ہیں، انڈیا سے انہیں سپورٹ مل رہی ہے۔ اور یہ جب چیزیں کہی جائیں تو اشتعال بڑھتا ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جب معاملات بہت اخیر تک پہنچ گئے، انتہا تک بات پہنچ گئی، تو پھر جو ہے نا یہ کرنے والے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں تھے، میں اب نام نہیں لوں گا، تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ کام بہت بڑھ رہا ہے، یہ بلڈ شیڈ ہوگا، بڑی تباہی ہوگی، پھر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، آپ کو علم ہوگا جماعت تو یہ سیاسی طور پہ سامنے آئی ہے، ہاں جی، پھر اسے مذہبی جماعت کا نام دے کے کالعدم قرار دے دیا گیا۔ آپ نے دیکھا جو فساد بھی ہوا لاہور میں، پہلے بھی پولیس والے شہید ہوئے، عام جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں اپنی جان سے گئے، اس دفعہ بھی یہی کچھ ہوا۔ اب آگے جا کے اب پہلے تو یہ کلیئر نہیں کرتے یہ سیاسی جماعت ہے، یہ مذہبی جماعت ہے، لوگوں کے ذہن میں، ایک عام آدمی کے ذہن میں ابھی تک یہی چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن میں یہ جو جماعت ہے یہ پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہے، ان کو کرین نشان الاٹ ہوا ہے، لیکن یہ بیسیکلی ہے مذہبی، جیسے جماعت اسلامی مذہبی جماعت ہے، لیکن ایز اے پارٹی پولیٹیکل پارٹی وہ کام کر رہی ہے، ان میں وہ اس طرح کا مذہبی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ تو ان کا جو معاملہ جب بگڑا ہے نا، صرف ایک بات سے بگڑا ہے، وہ جو فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کیا ہے، تو انہوں نے وہ کیا، یہ اسی وقت اگر یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے فرانس کے سفیر کو بے دخل کرنا۔ ممکن کیوں نہیں ہے ملک صاحب، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں جی کہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ہماری ساری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ یورپی یونین کے ساتھ ہے، کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ملک تنہائی کا شکار ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ
यूरोपियन यूनियन या ऐसे ममालिक जो मर्जी हमारे खिलाफ करते रहे, बिल्कुल हम हाथ बांध के उनके सामने खड़े रहे। देखें डॉक्टर साहब, हम अमेरिका नहीं है, हमारी मईशत अपने पाँव पर नहीं है, हम मुहताज लोग हैं, हमारा जो आसरा ही है ना वो दूसरे मुल्कों पर हम इंतजार करते हैं, तो हम आइसोलेट नहीं हो सकते इस दुनिया में रहकर। ये एक फैक्ट है, हकीकत है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। कब तक ऐसा होता रहेगा कि हम आगे हाथ जोड़ के इनके सामने खड़े रहेंगे? क्या समझते, इसमें अवाम का कसूर है या हमारे नुमाइंदों का कसूर है, क्या वजह है? देखिए जी, जब तक हमारी माशी हालत बेहतर नहीं होती, हमारी माशी पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं होती, जब तक हमारा मुल्क पाँव पर खड़ा नहीं होता, हम मुहताज ही रहेंगे बैरूनी दुनिया के, और हम आइसोलेट नहीं हो सकते, बैरूनी दुनिया से कट कर नहीं हो सकते। ये अफगानिस्तान देखे ना, अब वो तरले मिनता कर रहा है कि लोग हमारे साथ जो है ना वो तलकार बहाल करें। अब उनकी क्या हालत हुई है। ये पाकिस्तान है जो छोटी मोटी सपोर्ट कर रहा है, जो गल्ला दाना शाना सब्जियां जा रही हैं, वरना उनकी जो हालत है वो तो उनको पैसे देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। चले मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जफर साहब, आप क्या समझते, माहिर कानून भी हैं, एक जो धरना दिया जाता है, लॉन्ग मार्च दिया जाता है, लॉन्ग मार्च किया जाता है, इसकी कानूनी हैसियत आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ये बताएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मैं अर्ज करता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो असम्बली का राइट देता है हर शहरी को जी। लेकिन उसमें जो रुकावटें खड़ी की जाती हैं, लोगों का रास्ता बंद किया जाता है, उसकी कानून में हरगिज़ या आइन में हरगिज़ इजाज़त नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह का, ये जैसे मलिक साहब फरमा रहे थे, ये उनकी 6ठी दफ़ा थी, तो ये जो आम पब्लिक है, जो आम शहरी हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है। आपके कुछ जो पॉलिटिकल मामलात हों या कानूनी मामलात हों, तो उससे आप आवाम को तो उनके राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको तो नहीं रोक सकते। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये साद रिजवी साहब जो हैं, उनका जो बेल का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट से आप फैसला नहीं आता तो आपको तो कोई राइट नहीं, किसी को भी कोई राइट नहीं है कि वो रास्ता किसी का बंद कर दे या वो गवर्नमेंट को ललकारे, वो स्टेट को ललकारे। इस तरह तो नहीं चलेगा ना सर। ये सर जो उनका एक्ट था ये इलीगल था, और इलीगल जो कोई भी एक्ट होता है उसकी स्टेट जो है ना, कभी भी कोई भी रियासत हो उसकी इजाज़त नहीं देती और किसी को देनी भी नहीं चाहिए। अगर इस तरह ये जो मामला अदालतों में चल रहे हैं तो क्या हर बंदा जो है वो फिर इसी तरह इंसाफ लेने सड़कों पे निकल आएगा? तो फिर अगर इस तरह फिर इंसाफ होगा तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए, फिर कानून नाफिज करने वाले अदारे को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये बताएं, जो नुकसान हुए, जानी नुकसान सबसे कीमती है जफर साहब, जो जाने गई, चाहे वो पुलिस वाले हैं या आम लोग हैं, तो किस पे वो पर्चा बनता है, किस पे आयद होती है जिम्मेदारी? जो जाने गई है उसके जिम्मेदार कौन है? रियासत है या ये सियासी या मजहबी जमात है? देखें, अगर तो स्टेट की तरफ से कोई वायलेशन हुई है तो जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में हुई है तो डेफिनेटली वो जो करने वाला उसकी जिम्मेदारी है। और रियासत क्योंकि माँ है और माँ को अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है, तो अगर माँ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती तो फिर कौन रखेगा? तो दूसरा जो है, जो ये लब्बैक की तरफ से या अदरवाइज़ किसी की तरफ से तशद्दुद हुआ और के जो डेथ हुई, तो डेफिनेटली रियासत को उनके खिलाफ FIR लॉन्च करनी होगी। और कुछ FIR हो चुकी हैं और उनको जो अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर जो है, ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हुए उनको सज़ा होगी। अच्छा, सजा क्या हो सकती है? अगर किसको सजा होगी? कौन लोग सामने आएंगे? यही तो बात है ना। सरबराह को होगी, पार्टी के सरबराह को होगी या उनके जो नुमाइंदे उनको होगी? मेरी बात सुने। एक तो ये है कि जो वहाँ पे मौके पे मौजूद है, जिसने वो तशद्दुद के ज़रिए किसी को मारा, जो किसी ने भी जो चाहे वो फायर से मरा हो जी, एक तो वो जो मारने वाला है, और उस पे 109 पे उसका FIR होगी, जो उनकी पार्टी के हेड हैं, जो उनको इंस्टिगेट कर रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन पे 109 का उन पे भी पर्चा होगा। ठीक है, और डेफिनेटली ये इनको सजा भी होगी। अच्छा, मलिक साहब की तरफ आता हूँ। मलिक साहब, मायदा हुआ लेकिन सामने लेके नहीं आया गया, कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया जी कि उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया, मायदा हो चुका है। मायदा पहले भी हुआ, अब इसके महलका क्या देखते हैं, मायदे में क्या बातें हुई हों? मैं इससे पहले जो है ना इसको वाइंड अप कर देता हूँ जी करें। और तारड़ साहब की बात की मैं थोड़ी सी तोसीह कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस नहीं है। हाई कोर्ट ने फैसला इसको रिलीज़ करने का, साद रिजवी साहब को रिलीज़ करने का कर दिया था।
पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपील में गई सुप्रीम कोर्ट, जी। वहाँ पर हेयरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड कर दिया केस दोबारा हाई कोर्ट के डबल बेंच सुने। पहले सिंगल बेंच ने फैसला दिया था, अब डबल बेंच केस सुन रहा है और उसकी तारीख है कल। कल जो तारीख है कल उसकी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि मायदा ये हुआ है कि आप वहाँ आएँ और हम उसको वो नहीं करेंगे, स्ट्रेस नहीं करेंगे, अपोज नहीं करेंगे, हम पर उसने अपोज नहीं करेंगे, जी। तो उसकी कल वो रिहाई हो जाएगी। हाई कोर्ट कल 3 तारीख को बेल लगी हुई है, कल इसकी रिहाई हो जाएगी। दूसरा जो मायदा हुआ है ना, मायदे को देखे खुफिया रखा गया है, लेकिन उसकी फिर भी जुज़वियात सामने सारी बार आ गई हैं। अब सारी दुनिया में वो पता चल गया है कि क्या मायदा हुआ। मायदा ये हुआ है नंबर 1 कि तरीके लब्बैक कभी भी फ्रांस के मामले में बात नहीं करेगी, सफ़ीर की बेदखली का मामला हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। नंबर 2, आइंदा कभी ये लॉन्ग मार्च इस तरीके से नहीं करेंगे। नंबर 3, हम साद रिजवी को कल इंशाल्लाह तो आप देखेंगे कि रिहाई हो जाएगी। दूसरी बात, तमाम मुकदमात जो हैं वो वापस लिए जाएंगे और जो शेड्यूल 4 है उसको भी रिवर्स कर लिया जाएगा। नंबर 5, जो इनका तरीके कालदम इनको करार दिया हुआ है उसका प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में जाना था, वो ने कहा कि हम प्रोसेस में नहीं जाएंगे और पंजाब गवर्नमेंट इसको रिवर्स कर लेगी। अब वो उनकी कालदम वाली जो शिक है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये बाकायदा एक लीगल और पॉलिटिकल जमात के तौर पर ये काम कर सकेगी। अच्छा, फिर देखें एक इतनी जानें भी चली गई, धरना दिया, लॉन्ग मार्च की तरफ ये चाह रहे थे, फिर इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ साद जो रिजवी हैं उनकी रिहाई हुआ है ना इस जमात का। बाकी तो उन्होंने सारी बातें अपने एजेंडे से अपने मौके से पीछे हो गए कि कोई बात नहीं, फ्रांस का सफीर रहे, फ्रांस जैसी मर्जी करता रहे, यूरोपियन यूनियन करती रहे, ठीक है जी, उनको रिहा कर दें। 12 रबीउल अव्वल को जो 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस था ना वो धरने में कन्वर्ट हो गया। जो यतीम खाना चौक 2 दिन बंद रहा, उस दिन उनका सिर्फ एक मुतालबा था कि जब हाई कोर्ट ने रिलीज कर दिया पंजाब गवर्नमेंट क्यों गई है सुप्रीम कोर्ट, उसको रिहा किया जाए। सिर्फ एक मुतालबा था कि साद रिजवी को रिहा किया जाए, और तो मुतालबा था ही नहीं। तो पंजाब गवर्नमेंट का ये राइट नहीं था बनता, फिर क्या स्टेट का राइट राइट था हर शख्स के पास, हर था, स्टेट के पास। लेकिन ये है ना, देखिए कि अगर इस जो मुसीबत आने वाली थी उसको उन्होंने वो किया नहीं है ना। नहीं, अगर रिहाओ के ज्यादा मुसीबत आ जाती मलिक साहब, फिर दोबारा फिर वो धरने बड़ी सूरत में चले जाते थे। हर एक लीडर जब लीड करता है तो वो चीजें ज्यादा तेज होती हैं। अगर साहब रिजवी साहब बाहर आ जाते उस वक्त तो क्या समझिए तहरीक ज्यादा जोर ना पकड़ती फिर? नहीं, जब उनका एक मुतालबा था वो पूरा हो गया तो क्यों जोर पकड़ना था। तो पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ है कि मुतालबा पूरा और उस पर पूरा इम्प्लीमेंट हो जाए? बात देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद नहीं था। आपको पता है कि ये किस तरह ये मुमकिन हुआ मायदा कि ये जो थे इसमें जो काम कर रहे थे वो सारे नाकाम हो गए। तमाम वो वजीरे जो मजहबी मूर थे वो नाकाम हो गए, फवाद चौधरी नाकाम हो गए, शेख रशीद नाकाम हो गए, ये सारे नाकाम हो चुके थे। और फिर आपको पता है कि इनके पीछे जो अशारे होते हैं या जो ये करने कराने वाले होते हैं, आपको पता है इस बात का कि जब मुफ्ती मनीब साहब को एक दिन पहले बुलाया गया और मुफ्ती मनीब साहब सीधा डायरेक्ट आर्मी हाउस चले गए आर्मी चीफ से मिलने के लिए। किस लिए? आर्मी चीफ के पास गए, वहां पर जाके ये सारे मामला तय हुए और उन्होंने एज ए गारंटर तब तस्लीम किया कि जनाब मैं गारंटर हूँ। उनको गारंटरी आर्मी चीफ की तरफ से दी गई है कि जाएं आप ये मामला सॉल्व करो। तो फिर एक दिन में 24 से 36 घंटे नहीं मिले तो मामला हल हो गया। यानी कि पाक फौज को फिर इन मामला में वो लाया गया कि जी आप ही हल कर सकते हैं, बाकी मामला भी हमेशा फौज ही हल करती है। ये तो सीधी अमन के लिए कोशिश करती है, हर चीज मुफ्ती मनीब रहमान साहब सीधा पहले आते साथ ही फिर हमारे सियासतदान किस काम के हैं? सियासतदान किस काम के हैं मुझे बताया ना। अब देखें जी, ये इनके बस का काम ही नहीं है। बात ये तो जल्दी पर तेल लगाते हैं। अगर ये 2 बयान ना देते तो शायद ये भी किसी नतीजे पर पहुंच जाते। ये मिलिटेंस वाला, अस्करियत वाला, और ये बयान ना देते तो शायद ये किसी नतीजे पर पहुंच जाते। इन्होंने तो जल्दी के ऊपर आग फेंकी। चले, मैंने पता है जब वो उनके मुलाकात हो रही थी बनी उसमें बनी गाला में, तो इनको कहा इन दोनों बंदों को उठा लो। इतनी बेइज्जती की है उनकी कि यार ये बंदे बिल्कुल यहाँ नहीं बैठे। चले, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं जरा तारिक साहब से सवाल कर लूं कि तारिक साहब, अभी मलिक साहब ने बताया कि ये मायदा इस तरह हुआ होगा, आप इस मायदे को कैसे देखते हैं कानून की नज़र में और एक एनालिस्ट के तौर पे? देखें जी, जो हमारा कानून है, एग्रीमेंट जो भी होता है उसको अकॉर्डिंग टू शरीयत भी और कानून भी लिखा जाता है।
ठीक है। तो एक तो तहरीर है वहाँ पे, और इम्प्लीमेंट जो ग्रांटर है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, और उसमें जो ना एस्टेब्लिशमेंट की, जैसे मलिक साहब फरमा रहे थे, वो उन्होंने करवाया, और वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट भी वो करवा लेंगे। ठीक है, तो क्या समझते हैं अब मायदा जिस तरह से हुआ होगा, क्या उस पर पूरी तरह से अमन होगा? क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में अमन होगा? सियासी जमातें आइंदा इस तरह वो नहीं करेगी जिस तरह से तोड़ फोड़ की, खंदकें खोदी गई, अमला को नुकसान पहुंचाया गया? क्या समझते हैं कि ये तंजीम आइंदा से इस तरह रुक जाएगी फिर? मैं तो समझता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई इकदाम मुतवक्को नहीं है, क्योंकि ये बाकी सियासी जमातों का जो सिलसिला था वो तो पहले ही रुक चुका था। वो तो उनके स्टेटमेंट जो थे, जितने उनके बयानात थे स्टेट के अगेंस्ट, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट, तो पहले ही आवाम उनके साथ निकलती नहीं थी। तो ये जो रिलीजन्स का मजहबी मामले को लेकर निकलते थे, ये अपने मजहब को इस्तेमाल, मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते थे, तो लोग साथ निकलते थे। अब मेरे ख्याल से उन जो लोग निकलते थे उनको भी पता चल गया होगा कि ये सिर्फ अपने मफाद की जंग लड़ रहे हैं, या किसी के मफाद की जंग नहीं लड़ रहे। चले, अभी दोनों हमारे जो तजियाकार हैं उन्होंने बताया कि माहिदा क्या हो सकता है, इम्प्लीमेंट उस पर होगा नहीं होगा, इस पर हमने बात की। नाज़रीन, महंगाई बहुत अरूज पे इस वक्त, महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, हुकूमती दावे सब नाकाम हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद।